Hello students, today we are going to do topic amalgamation of companies from the subject Advanced Corporate Accounting. This subject is taught under the syllabus of Department of Commerce, Chaudhary Devilal University, Sirsa in the 4th semester as Advanced Corporate Accounts. So a new term for second year students, amalgamation of companies. As you can see on the screen, I have written the topic amalgamation of companies. Amalgamation of companies is a wider term. It means to combine. Combine companies that are doing similar business. Amalgamation means to combine companies that are doing similar business so to avoid competition and to obtain the advantages of large scale production. Now, it is a very simple and brief definition of amalgamation. So, we understand the definition or the term in detail. So, we need to recall or explain some terms related to amalgamation. So the first term is itself amalgamation. Amalgamation, let's explain with an example. Suppose there are two companies, A Limited and B Limited. Okay. It is not necessary that both of them are going in losses. Both of them may be going in profits, one of them may be in profits and the other is in losses, or both may be in profits. Just they want to combine because they are doing similar business, they can combine easily. They want to combine and obtain the advantages of bigger production because amalgamation means to combine. When A and B will combine with each other, their resources will also get combined, they will be pooled, and now A will have access to B Limited resources and B will have access to A Limited resources. Now A Limited will close down, B Limited will close down, and a new company will be formed which will be named C Limited, which will not be similar to A or B. So this is an example that A Limited is wind up and B Limited is wind up, and in place of A and B a new company comes into existence which is known as C Limited. So I hope things are clear with the example, but we need to define it. We can say that when two or more companies doing similar business go into liquidation, when it is not necessary that only two companies, it can be two or more companies. When two or more companies go into liquidation and the condition is that they are doing similar business and they are doing similar business, and a new company is formed to take over their business, it is known as amalgamation. So for Hindi medium students, I will explain in Hindi also. अमलगामेशन क्या होता है? अमलगामेशन मतलब कि जब दो कंपनीज़ जो ऑलरेडी मार्केट में अपना काम कर रही हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड. दोनों कंपनीज़ ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि हम अपना बिज़नेस बंद करके इकट्ठे मिलके हम एक नया बिज़नेस सेटअप करते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? अमलगामेशन.
ए लिमिटेड ने अपना बिजनेस बंद किया, बी लिमिटेड ने बंद किया, फिर बाद में दोनों ने मिलके एक इकट्ठी कंपनी शुरू कर ली जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, सी लिमिटेड। तो इसमें क्या है, अमलगामेशन मतलब कि दो कंपनीज पहले लिक्विडेट होंगी, लिक्विडेटेड मतलब ख़त्म होंगी, और उनकी जगह पे एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में मार्केट में आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगामेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो उन दोनों का जो बिज़नेस है वो सेम होना चाहिए, तभी वो एक नया बिज़नेस जो है वो टेक ओवर कर सकते हैं। अब इसी से मिलती जुलती एक और टर्म है, वी हैव वन मोर टर्म, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई नई कंपनी नहीं बनती, नो न्यू कंपनी इज़ फॉर्म्ड। क्या होता है, एक कंपनी जो ऑलरेडी मार्केट में है, एक और कंपनी जो भी मार्केट में है, पहले वाली कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करती है, परचेज कर लेती है, उसको टेक ओवर कर लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एक कंपनी है ए लिमिटेड, दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। ए कंपनी ने क्या किया, दोनों मार्केट में है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज कर लिया, इसका नाम ए ही रहेगा। बी लिमिटेड अब ख़त्म हो जाएगी, ए लिमिटेड अपना काम भी कर रही थी, अब वो बी लिमिटेड का काम भी करेगी, बट वो अपने नाम से करेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन। इसका एक सिंपल जो बेसिक टर्म्स में हम उदाहरण दे सकते हैं, उस क्या होता है कि जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यहाँ पे भी वही होता है, जो बड़ी कंपनी होती है वो छोटी कंपनीज़ को ख़रीद लेती है, या तो वो लॉस में जा रही होती है या वो मार्केट के कंपटीशन को नहीं झेल पाती, तो बड़ी कंपनीज़ क्या करती हैं, उन छोटी कंपनीज़ को ख़रीद के और फिर उनका बिज़नेस अपने नाम से चलाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एब्सॉर्प्शन। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कंपनीज ऐसा क्यों करती है, उनको क्या फ़ायदा मिलता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमलगामेशन एंड एब्सॉर्प्शन। नंबर 1, टू एलिमिनेट कंपटीशन। नॉर्मली होता ही ऐसे है कि दो कंपनीज़ पहले दोनों मार्केट में थी, उनका शेयर जो है वो बट रहा था, कुछ कस्टमर्स ए के पास जा रहे थे, कुछ बी के पास जा रहे थे। अब जब दोनों कंपनीज एक हो गई तो सारे के सारे कस्टमर्स भी उनके कॉमन हो गए, तो कंपटीशन क्या हो गया, ख़त्म। नंबर 2, टू टेक एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। टू टेक एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, दोनों के पास अपने अपने रिसोर्सेज थे, ए के पास अपने रिसोर्सेज थे, बी के पास अपने, पर दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। अब दोनों के रिसोर्सेज इकट्ठे हो गए तो जो वो अपनी प्रोडक्शन का लेवल है उसको भी वो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर 3, टू इंक्रीज़ द कैपिटल। अमलगामेशन में ये बहुत होता है, इंक्रीज़ द कैपिटल मतलब कैपिटल बढ़ जाती है, ए लिमिटेड के पास अपनी कैपिटल है, बी लिमिटेड के पास, और नॉर्मली क्या होता है अमलगामेशन में जो कंपनीज़ का साइज़ होता है वो सेम होता है। एब्जॉर्प्शन में हमने क्या किया कि वन कंपनी इज़ अ बिग वन एंड द अदर इज़ स्मॉल, तो वहाँ पे कैपिटल इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती है, बट अमलगामेशन में कैपिटल इंक्रीज़ होती है क्योंकि वो दोनों कंपनीज़ लगभग सेम साइज़ की होती हैं। तो कैपिटल इंक्रीज़ करने की उनको एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर हम मिल के काम करेंगे तो हम दोनों की कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं और जो हमारा कैपिटल का बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नंबर 4, टू हैव द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स। इसमें क्या होता है, जो एक कंपनी के पास एक्सपर्ट है उसको अब दूसरी कंपनी भी यूज़ कर सकती है, तो अब उनको क्या जो एडवांटेज है वो नई कंपनी को मिलेगी। एब्जॉर्प्शन में क्या हो सकता है कि छोटी कंपनी के पास बहुत ही एक्सपर्ट बंदे हों, तो जब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को ख़रीद लिया तो वो उन एक्सपर्ट्स की सर्विसेज को अवेल कर सकती है, अपने बेनिफिट के लिए वो उनको यूज़ कर सकती है। नंबर 5, टू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट। टू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर मार्केट। पहले क्या था, ए लिमिटेड अपना काम कर रही थी, बी लिमिटेड
ए लिमिटेड बी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती थी, बट नाउ आफ्टर अमलगामेशन बोथ हैव कंबाइंड, तो अब उनका जो मार्केट पे कंट्रोल है वो बहुत अच्छा हो सकता है। सिमिलरली एब्जॉर्प्शन में भी ए लिमिटेड अब बी लिमिटेड वाले एरिया पे भी कंट्रोल कर सकती है। नाउ बी लिमिटेड इज़ अ पार्ट ऑफ ए लिमिटेड। सो बेटा ये था अमलगामेशन और एब्जॉर्प्शन का मीनिंग, कंसेप्ट, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स किए कि वाई डू कंपनीज गो इनटू अमलगामेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ऑलरेडी वो बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं, बट कुछ उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ कंबाइन करने के उनको फ़ायदे मिलते हैं, कम्बिनेशन के एडवांटेजेस होते हैं, जिस वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन जो है वो करती हैं। नाउ देयर इज़ वन मोर टर्म, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन आपको पता है जो रिकंस्ट्रक्शन है वो 2 वर्ड से बना है, री प्लस कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स कुछ बनाना, टू मेक, टू बिल्ड, एंड री मीन्स अगेन। Reconstruction, from the 2 words we can derive that meaning to make again, to build again. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स की, कंपनीज़ की। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। टर्म रिकंस्ट्रक्शन उसी चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, बट इसका अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन से कोई रिलेशन नहीं है। इसमें क्या होता है, कंपनीज कंबाइन नहीं करती, सिर्फ हम एक कंपनी, एक सिंगल कंपनी को हम क्या करते हैं, रीबिल्ड या रीऑर्गेनाइज। क्यों करते हैं रीऑर्गेनाइज? क्योंकि इट इज़ गोइंग इन लॉसेस विच नीड टू बी रिटन ऑफ। मेकओवर, आप सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहते हैं, मेकओवर, कि कंपनी का मेकओवर करना, जो वो पहले दिखती थी उसको अब सुधारना, उसको इम्प्रूव करना और उसको एक नया लुक देना। मार्केट में इमेज है कि वो कंपनी लॉसेस में जा रही है, तो हम उसको ऐसे रीऑर्गेनाइज करते हैं कि जो उसके लॉसेस हैं उनको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। Number 1 internal and number 2 external. So first we will explain the external reconstruction. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक्सटर्नल मीन्स बाहर से। जब हम कंपनी के बाहर जाके कंपनी को रीऑर्गेनाइज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, नेम्स चेंज हो जाते हैं, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं। ओके, तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ऑल दीज पर्पसेस अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड विद द न्यू नेम, बट पुराना क्या रहता है, पुराना रहता है विद ओल्ड शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट। पहले क्या कंपनी थी, ABC कंपनी लिमिटेड, बहुत लॉसेस में जा रही थी, तो उसके शेयर होल्डर्स ने क्या किया, एक्सटर्नली उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का सोचा। एक्सटर्नली रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, शेयर होल्डर्स वही होंगे, उसका नेम चेंज हो जाएगा, न्यू ABC कंपनी लिमिटेड। तो
इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे लॉसेस होते हैं उनको हम ओवरकम या राइट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, चाहे हम फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल करें, ओके। उसमें क्या होता है, रियल वर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम अपना जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसको चेंज करते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कई क्लॉजेज होते हैं। नेम क्लॉज होता है बिकॉज वी आर चेंजिंग द नेम, कैपिटल क्लॉज होता है बिकॉज वी आर चेंजिंग द कैपिटल। हो सकता है प्लेस भी चेंज करें, हम हेडक्वार्टर्स उसके एक सिटी से दूसरी सिटी में ले आएँ, तो ओवरऑल जो क्या होता है वो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी उसमें चेंज हो जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको पता है जो मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, अगर वही चेंज हो रहा है तो इट इज़ अ वेरी मेजर चेंज इन द कंपनी, सो इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, कि हम उसमें उसका जो आउटर लुक है, जो ओवरव्यू है, वो सारा चेंज कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो वाई डू वी गो फॉर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन? ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमारे एम्स क्या होते हैं? नंबर 1, टू राइट ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जो भी पास्ट ईयर में हमारे बहुत सारे लॉसेस इकट्ठे हो गए हैं उनको हमने किसी ना किसी तरह ख़त्म करना है, अपनी बुक्स में से उनको हटाना है। टू सेव द कंपनी फ्रॉम लॉसेस इन फ्यूचर, आने वाले टाइम में कंपनी को जो लॉसेस से बचाना है उसके लिए भी हम कंपनी को ऑल टुगेदर जो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। न्यू कैपिटल रेज करना, टू रेज फ्रेश कैपिटल। Number 4, to change the memorandum of association. So these are the objectives of external reconstruction. Now we will study about internal reconstruction. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स इनसाइड द कंपनी। कुछ नहीं होता इसमें, टोटली डिफरेंट है अमलगमेशन से, एब्जॉर्प्शन से, एक्सटर्नल से। ना नेम चेंज होता है, ना कोई नई कंपनी आती है, ना कोई पुरानी कंपनी टेक ओवर करती है, ना कोई लिक्विडेशन में जाता है। सिर्फ और सिर्फ हम इसका जो इंटरनली जो है वो रीऑर्गेनाइज करते हैं। कंपनी की आइडेंटिटी जो है वो एज इट इज़ रहती है, हम सिर्फ उसको इंटरनली रीऑर्गेनाइज करते हैं, और वो 2 तरह से होती है, रीअरेंजमेंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रीअरेंजमेंट ऑफ शेयर कैपिटल कैसे होती है बेटा? जैसे पहले अगर 100 रुपीज़ का शेयर था तो उसको हम 10 रुपीज़ का कर देंगे। सपोज़ हमारे पास 100 रुपीज़ के 100 शेयर्स थे, तो हमारी कैपिटल कितने से आ रही थी? 10,000 की। अब हम उसी शेयर को 10 का कर देते हैं तो हमारे शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1000। कैपिटल हमने उतनी ही रखी, सिर्फ उसकी जो डिनोमिनेशन थी उसको हमने क्या कर दिया? रीअरेंज। 100 वाला 10 में कर दिया, हो सकता है हम 100 वाला 50 में कर दे, तो 50 में करने के लिए हमें कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 200। तो इसी तरह हम उसकी जो है वो रीअरेंजमेंट कर देते हैं। ओके, उसमें क्या होता है, हम अपने एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ हमारी बैलेंस शीट में होते हैं, हम उनको क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। एसेट्स ओवर वैल्यूड होते हैं, उनको हम एक्चुअल वैल्यू पे लेके आते हैं। तो इसी तरह से हम इंटरनली जो है वो अपने कंपनी को रीऑर्गेनाइज करते हैं। और रिडक्शन में क्या होता है, हम अपनी कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। हो सकता है हमारी शेयर कैपिटल हमारे उतने इक्वल एसेट्स को ना शो कर पाए, तो हम अपने जो शेयर्स हैं उनको बाय बैक करते हैं, मार्केट में से ख़रीद लेते हैं, और इस तरह से हम अपनी शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? रिडक्शन।
तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? टू प्रेजेंट अ फेयर एंड ट्रू व्यू ऑफ द कंपनी, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी, क्योंकि जब हम एसेट्स को करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स को हटा देंगे तो कंपनी की एक एग्जैक्ट पिक्चर जो है वो हमारे सामने आ जाती है. टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स आपको पता है ना, जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू होता है, ये हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं. ये एक्चुअल में हमारे पास कभी भी नहीं होते, तो इनको हम क्या करते हैं? राइट ऑफ. इनको हम अपनी बैलेंस शीट में से हटा देते हैं. नेक्स्ट, टू रिड्यूस द फेयर वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू द नेटवर्थ. मार्केट में हमारे शेयर की प्राइस है 20 रुपीज़ और बैलेंस शीट में हम अपने शेयर की प्राइस शो कर रहे हैं 40 रुपीज़, विच इज़ नॉट द रियल पिक्चर. तो हम क्या करेंगे? शेयर्स की फेस वैल्यू को रिड्यूस करेंगे जितने हमारे जो नेटवर्थ है, जितने एसेट्स उसके इक्वल हैं, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं. नेक्स्ट, टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर्स. among the shareholders. अगर हम एग्जैक्ट पिक्चर प्रेजेंट करेंगे, उनको पता होगा कि हमारे कितने इन्वेस्टमेंट है और हमें कितना रिटर्न मिलेगा, तो वो कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है शेयर होल्डर्स में, वो हमारे साथ लॉन्ग टाइम तक बने रहेंगे. तो दिस इज़ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. so far we have done 4 terms: amalgamation, absorption and reconstruction. And in reconstruction we have done 2 types: external and internal reconstruction. So now when we are going to start with accounting treatment, I'm just giving a overview. We will do the detailed accounting treatment in the next video. Accounting treatment, as far there is no difference in amalgamation, absorption and external. Amalgamation, absorption and external reconstruction. It is same in these 3. In amalgamation, a new company is formed. In external reconstruction, a new company is formed. In absorption, a bigger company takes over a small company. So far in these 3, the accounting treatment remains the same. But in case of internal reconstruction, it is totally different. Is different from the above 3. So in this chapter, we are basically concerned with accounting treatment in case of amalgamation and absorption and external reconstruction, and I have already told you that it is same in all the 3 cases. So we will be more focusing on amalgamation. The term will be used amalgamation again and again while we are solving the practical sums. And the accounting standard which is used, which governs the treatment, accounting treatment of amalgamation, is AS 14. AS 14. Okay, so now I will discuss 2 terms. One is transferor company and number 2, transferee company. Transferor company is which is amalgamated.
Okay, and transferee company is into which a transferee company is amalgamated. Company is amalgamated. Examples explain करते हैं. A and B. A new company is formed, C. So A and B are both transfer companies. And C is transferee company. Okay. So this was about amalgamation, absorption, external reconstruction and internal reconstruction. Accounting standard 14 is followed while doing the accounting treatment for amalgamation. There are two companies, transfer company and transferee company. Transfer company which is amalgamated, and transferee company which is amalgamated, into which the company is amalgamated. Means the new company is transferee company and the old companies are transfer companies. So that's all for the introduction and the theoretical portion of topic amalgamation of companies. In next video we will talk about the accounting treatment of amalgamation. There are few questions which can be framed from amalgamation of companies, like which accounting standard applies for accounting treatment of amalgamation. So we have already discussed, it is accounting standard 14. Second question, reconstruction is of how many types? So we have discussed this also. It is of two types, internal reconstruction and external reconstruction. Amalgamation is of how many types? We have not discussed, but I will tell you it is of two types, in the nature of merger and in the nature of purchase. How many conditions are to be satisfied in case of amalgamation in the nature of merger? There are 5 conditions which have to be satisfied in the nature of merger, and if any one of them is not satisfied, it is in the nature of purchase. And there can be one more question asked. Transferee company is, who is a transferee company? One who purchases or the one who is sold out? So transferee company is the one who is being sold out. No, one who is purchasing it. ओके. ट्रांसफ़र कंपनी कौन होती है? जो बिक्री होती है. और ट्रांसफरी कंपनी होती है जो उसको ख़रीद रहा होता है. ओके बेटा, थैंक यू ऑल.